شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بہت سال پہلے اللہ نے اس کائنات، سورج، چاند اور زمین کو پیدا کیا۔ پھر اللہ نے انسان کو بنانے کا فیصلہ کیا تو اس نے فرشتوں کو اس زمین سے مٹی اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا۔ فرشتے اس زمین پر آئے اور الگ الگ جگہوں سے مٹی اکٹھی کی۔ پھر اللہ نے انسان کی شکل بنائی اور اسے آدم علیہ السلام کا نام دیا۔ اللہ نے اس شکل کو 40 سال تک ایسے ہی چھوڑ دیا۔ فرشتے اور ابلیس بہت حیران تھے کہ آخر یہ کیا ہے۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے، لیکن ابلیس سب سے زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ ایک دن اللہ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح ڈالی۔ جب روح ان کے سر تک پہنچی تو انہوں نے چیخ ماری۔ جب روح ان کی ٹانگوں تک پہنچی تو انہوں نے جنت میں پھلوں کی طرف دیکھا اور انہوں نے پھلوں کو کھانا چاہا۔ اس سے پہلے کہ روح ان کی ٹانگوں تک پہنچتی، انہوں نے تیزی سے چھلانگ لگائی، جس وجہ سے وہ گر پڑے، اور اللہ نے فرمایا کہ انسان بے صبر ہے۔ اللہ نے تمام فرشتوں اور ابلیس کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو عزت دی جائے، نہ کہ ان کی عبادت کی جائے۔ سب فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، سوائے ابلیس کے۔ اس نے سوچا کہ وہ آدم علیہ السلام سے بہتر ہے، کیونکہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ حتیٰ کہ اس نے اللہ سے بحث کی اور اسی وقت سے ابلیس شیطان بن گیا۔ اللہ نے قیامت کے دن تک ابلیس پر لعنت کی۔ شیطان سمجھ گیا تھا کہ اللہ آنے والے دنوں میں اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ اس نے اللہ سے ایک خاص طاقت کی درخواست کی تاکہ وہ انسانوں کو گمراہ کر سکے، یعنی نیکی کے راستے سے بھٹکا سکے اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جا سکے۔ اللہ نے اس کی یہ آخری درخواست منظور کر لی اور اسے خاص طاقت عطا کر دی۔ ابلیس انسان کو کیوں بہکانا چاہتا تھا؟ دیکھتے ہیں، کسی کو معلوم ہے؟ کون مجھے بتا سکتا ہے؟ میں بتا سکتا ہوں، کیونکہ ایک انسان کی وجہ سے وہ شیطان شر بن گیا۔ اس بات نے اسے بہت پاگل بنا دیا، اس لیے وہ انسان کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا اور اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں لے جانا چاہتا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا، وہ ہم سب کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان برائی کی علامت ہے، فرشتے اچھائی کی اور آدم علیہ السلام علم کی علامت ہے۔ آدم علیہ السلام بہت ذہین تھے کیونکہ اللہ نے انہیں ہر چیز کا نام سکھایا تھا۔ حوا علیہ السلام جو انسانوں کی ماں ہے، انہیں کیسے پیدا کیا گیا؟ جیسا کہ بہت سال گزر گئے تھے، آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے اور انہوں نے خود کو تنہا محسوس کیا۔ ایک دن وہ کچھ وقت کے لیے سو گئے اور جب وہ اٹھے تو انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جسے اللہ نے آدم علیہ السلام کی بہت چھوٹی سی بائیں طرف والی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کون ہو؟ ایک عورت، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ تاکہ تم مجھ میں سکون پا سکو۔ فرشتے جاننا چاہتے تھے کہ آدم علیہ السلام کے پاس کتنا علم ہے، انہوں نے آدم علیہ السلام سے پوچھا، اے آدم، اس عورت کا کیا نام ہے؟ حوا۔ اس آدم کا نام حوا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کسی جاندار چیز سے پیدا کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں بہت خوش رہ رہے تھے اور اللہ نے انہیں ایک درخت کے علاوہ ہر چیز کا مزہ لینے کی اجازت دی تھی۔ اللہ نے ان سے کہا، شیطان ان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور وہ ان دونوں کو جنت سے نکالنا چاہے گا۔ وہ دونوں سمجھ گئے تھے کہ انہیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ کئی سال گزر گئے تھے۔ آدم علیہ السلام صرف ایک انسان تھے اور انسان بھول جاتا ہے، تو شیطان نے آدم علیہ السلام کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے
वो हराम फल खाने के लिए कहता रहा। एक दिन वो अल्लाह का हुक्म भूल गए और उस दरख्त का फल खाने का फैसला किया जिसे अल्लाह ने उन्हें मना किया था। उन्होंने एक फल उठाया, अभी उन्होंने खाना खत्म ही किया होगा कि उन्हें अपना दिल धड़कता हुआ महसूस हुआ, जैसे कि वो दर्द से, गम से और शर्म से भर गया हो। उनके इर्द गिर्द का माहौल बदल गया था और उनके अंदर की धुन रुक गई थी। उन्हें पता चला कि वो बरहना यानी बिना कपड़ों के हैं। उन्होंने फौरन अपने आप को पत्तों से ढका। वो बहुत बड़ी मुश्किल में थे क्योंकि उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की थी। अल्लाह ने दोनों को जन्नत से बाहर निकाल दिया। वो कब जमीन पर आए? ये जुम्मे का दिन था जब उन्होंने जमीन पर कदम रखा। और क्या आप जानते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को भी जुम्मे के दिन पैदा किया गया था। यही वजह है कि सूरज तुलू होने का सबसे बेहतरीन दिन जुम्मा है। वो कौन सी जगह थी जहाँ उन्होंने जमीन पर कदम रखा था? इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम सफा पहाड़ पर आए और हवा अलैहिस्सलाम इमाम मरवा पहाड़ी पर तशरीफ लाईं। आदम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अब उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा और जमीन में कोशिशें भी करनी पड़ेंगी। उन्हें खुद को और अपने खानदान को कपड़ों से छुपाना था और हथियारों का इस्तेमाल करते हुए जंगली जानवरों से उनकी हिफाजत करनी थी और सबसे बढ़कर उन्हें बुराई के साथ लड़ना था। उन्होंने जमीन में नई जिंदगी शुरू की। उनके घर का आगाज जुड़वा बच्चों से हुआ, जिनमें से एक का नाम काबिल था और एक उसकी बहन थी। कुछ अरसे बाद उनके घर फिर जुड़वा हुए, हाबिल और उनकी बहन। इस खानदान ने अल्लाह की तरफ से दिए हुए बेहतरीन तोहफे और फलों का मजा उठाया। बच्चे मजबूत और सेहतमंद नौजवान की तरह बड़े हो चुके थे। काबिल एक किसान था जो कि फसलें उगाता था, जबकि हाबिल एक चरवाहा था जो कि जानवर पालता था। जब वो शादी के काबिल हुए तो अल्लाह ने वही यानी हुक्म नाजिल किया जिसमें उन्हें कहा गया था कि हर बेटे की शादी दूसरे बेटे की जुड़वा बहन से की जाएगी, जिसका मतलब था कि काबिल हाबिल की जुड़वा बहन से शादी करेगा और हाबिल काबिल की जुड़वा बहन से शादी करेगा। मगर काबिल ने अल्लाह के हुक्म से इनकार कर दिया क्योंकि वो अपनी जुड़वा बहन से शादी करना चाहता था। आदम अलैहिस्सलाम एक मुश्किल में थे। वो अपने खानदान में अमन और इत्तेफाक चाहते थे, तो उन्होंने मदद के लिए अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने हुक्म दिया कि हर एक बेटा कुर्बानी देगा और जिसकी कुर्बानी कबूल कर ली जाएगी उसके पास पसंद की शादी करने का हक होगा। दोनों बेटे कुर्बानी करने के लिए तैयार थे। हाबिल ने अपना बेहतरीन जानवर पेश किया, लेकिन काबिल जो हमेशा मुसीबत खड़ी करने वाला था उसने अपना बदतरीन जानवर पेश किया। लिहाजा अब तक काबिल पहले ही 2 गलतियां कर चुका था। कौन बता सकता है मुझे? उसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की क्योंकि वो हाबिल की बहन से शादी करना नहीं चाहता था कि उसने कुर्बानी भी सही तरीके से नहीं की थी। बिल्कुल ठीक कहा। क्या आप सबको लगता है काबिल की कुर्बानी अल्लाह की तरफ से कबूल की जाएगी? बिल्कुल ठीक कहा। अल्लाह ने उसकी कुर्बानी को कबूल नहीं किया क्योंकि काबिल ने अल्लाह की नाफरमानी की थी और इसी बात ने काबिल को इंतहाई गुस्सा दिलाया। उसने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि इसकी अपनी खूबसूरत बहन से शादी की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। उसका यही तकब्बुर उसे शैतान की राह पर ले गया और काबिल ने हाबिल को कत्ल करने की धमकी दी। एक दिन हाबिल को काम से वापसी से थोड़ी देर हो गई, लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को भेजा कि आखिर देखो उसे क्या हुआ है। काबिल को मौका मिला और उसने भाई को अकेला पाया। काबिल इतना पागल हो चुका था, उसने एक पत्थर फौरी तौर पर उठाया और अपने भाई को मारा, जिस वजह से उसका भाई उसी वक्त मर गया। ये पहली मौत थी और जमीन पर वो पहला जुर्म था जो इंसान के हाथ से हुआ था। शैतान ने इंसान को एक बार फिर गुमराह किया था। इस तरह इस जमीन में जुर्म शुरू हुए तो आदम अलैहिस्सलाम ने उसे तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन वो अपने प्यारे बेटे को तलाश ना कर सके। उन्होंने हाबिल के बारे में काबिल से पूछा, लेकिन काबिल ने कहा,
मैं अपने भाई की हिफाजत करने वाला नहीं हूँ। तब आदम अलैहिस्सलाम समझ गए कि हाबील मर चुका है और आदम अलैहिस्सलाम का दिल दुख से भर गया। हाबील ने अपने भाई की लाश के साथ क्या किया? हाबील इस जमीन पर पहला मरने वाला इंसान था। काबिल को मालूम नहीं था कि इसके साथ क्या करना चाहिए। वो उसकी लाश को अपनी पीठ पर उठाए परेशानी की हालत में यहाँ वहाँ जगह जगह घूम रहा था कि आखिर इसे कहाँ छुपाया जाए। उसी वक्त अल्लाह की तरफ से रहमत हुई। अल्लाह ने 2 कौवे भेजे जिन्होंने आपस में लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई करते करते एक कौवे की मौत हो गई। जीतने वाले कौवे ने अपनी चोंच और पंजों का इस्तेमाल किया और जमीन में एक सुराख खोदा। इसमें मुर्दा कौवे को डाला और उस पर मिट्टी डाल दी। काबिल ने ये देखा तो अपने आप में बहुत शर्मिंदा हुआ। काबिल ने फिर उसी तरह से अपने भाई को दफन किया जो कि इंसान की पहली तदफीन थी। आदम अलैहिस्सलाम अपने 2 बेटों के खो जाने की वजह से उदास थे। एक फौत हो चुका था और दूसरे को शैतान ने अपने कब्जे में कर रखा था। उन्होंने अपने बेटों के लिए दुआ की और अपने दूसरे बच्चों और पोतों को नसीहत की। अल्लाह के बारे में उन्हें बताया और उनसे अल्लाह पर यकीन करने के लिए कहा। उन्होंने शैतान के बारे में बताया और अपने तजर्बे यानी जो उनके साथ हुआ था उससे आगाह किया और उनको याद दिलाया कि किस तरह शैतान ने काबिल को उसके अपने भाई हाबील को कत्ल करने के लिए बहकाया। काफी साल गुजर चुके थे। आदम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे और उनके जमीन पर बहुत सारे बच्चे थे। जब आदम अलैहिस्सलाम की मौत करीब आ गई तो उन्होंने इंसानों की मजीद रहनुमाई के लिए अपने बेटे सेठ को मुकर्रर किया। जब आदम अलैहिस्सलाम की मौत करीब थी उन्हें जन्नत के फल की एक भूख महसूस हुई तो उनके बच्चों ने फल तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी। जब वो फल तलाश कर रहे थे तो उनके फरिश्तों से मुलाकात हुई। फरिश्तों ने उन्हें आदम अलैहिस्सलाम के पास वापस जाने के लिए कहा क्योंकि उनका आखिरी वक्त करीब था। वो फरिश्तों के साथ वापस आए और जब हव्वा अलैहिस्सलाम ने मौत का फरिश्ता देखा तो वो इसे पहचान गई और आदम अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ी। आदम अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनकी बीवी डर गई थी, लेकिन उन्होंने उनसे कहा कि ये उनके जाने का वक्त है और ये सब इस वजह से है कि ये अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है। उनकी मौत से पहले उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि अल्लाह जमीन पर इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि उनकी रहनुमाई के लिए नबियों को भेजेगा। नबियों के मुख्तलिफ नाम होंगे, खसूसियात भी मुख्तलिफ होंगी और मौजज़ात भी मुख्तलिफ होंगे, लेकिन एक बात में वो सब मुत्तहिद होंगे कि वो सब एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें बंद की और फरिश्ते उनके कमरे में दाखिल हुए और उनको घेर लिया। जब आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम फरिश्तों के दरमियान मौत का फरिश्ता भी मौजूद पाया तो उनका दिल इत्मीनान से मुस्कुराया। फरिश्ते ने उनकी रूह कब्ज कर ली और उसे लपेट लिया। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की और एक कब्र खोदी और उसमें इन्हें लटा दिया। ये मौत के वक्त का एक तरीकाकार था। आज के लिए हमारी कहानी खत्म होती है। इंशाअल्लाह अगली बार हम नबियों की एक और खूबसूरत कहानी से लुत्फानंदोज